Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, first of all, I wish you Happy New Year to all of you. So, student, today date is 3rd January 2022. Let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So, student, in the previous video, we have completed chapter number 16 and name of the chapter is weather and season. Okay, so today video we will start a new chapter, that is chapter number 17, and name of the chapter the earth and sky. So first of all, children, before starting the chapter, let discuss what are the learning objective of this chapter. It means after completing this chapter, what are the things you are able to understand in this chapter. What makes our earth special? Okay, so the first learning objective is what makes what makes our earth special. Okay, next is the next learning objective which we will study in this chapter is what is a solar system. Next is the solar system. Third is difference between star and planets. Between difference between stars and planets. Next learning objective is the different constellation. Different constellation. So these are the learning objective of this chapter. After completing this chapter, we are able to understand these things in this chapter. What makes our earth special? What is the solar system? What is the difference between a star and a planet? And next is the different constellation. Okay, now let's start with the first learning objective of this chapter. What makes our earth special? Okay, so first learning objective is what makes our earth special. Why we say our planet as a special planet also? Earth is also known as a special planet. Okay, so there are 8 planets, and out of these 8 planets, the earth is the only planet where life is possible. ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए. ठीक है, देर आर अदर 8 planet also, but earth is the only planet on which the life is possible. That is the reason, student, we say that earth is a special planet. Okay, so because water is present, air is present, and all the conditions
विच आर रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कंडीशंस होती हैं वो सारी चीजें किस प्लेनेट पे भी है बेटा प्रेजेंट, दैट इज आवर प्लेनेट अर्थ। दैट इज द रीजन द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द स्पेशल प्लेनेट। ओके, नाउ हाउ द अर्थ लुक लाइक, giant ball, giant ball of rock। ठीक है, आप लोग भी बॉल से खेलते होगे, मैन मेड है बॉल, क्या है मैन मेड है। इसी तरह हमारे अर्थ की भी शेप है, लेकिन ये बहुत बड़ी है, इसीलिए वर्ड यूज है जेंट बॉल ऑफ रॉक्स। ओके, तो इसकी शेप भी बॉल की तरह है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। इज इट क्लियर? सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ, सो आपने अर्थ के, अगर आपने अर्थ की पिक्चर देखी होगी तो मैक्सिमम आपने अर्थ के पिक्चर में ब्लू, अगर आपने अर्थ का जो मॉडल है ग्लोब, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, अगर आपने ग्लोब देखा होगा बेटा, या तो फिर आपने अपनी बुक में पिक्चर ऑफ अर्थ देखी हो, ठीक है, आपके बुक में भी पेज नंबर 90 पे। ओके, सी दिस इज द पिक्चर गिवन, दिस इज द पिक्चर ऑफ द अर्थ। So what you observe in this picture, student? We observe that maximum our earth look like, and earth is also known as blue planet, is also known as blue planet, क्योंकि आप पिक्चर ऑब्जर्व करोगे तो मैक्सिमम कलर विच यू आर एबल टू सी दैट इज ब्लू, और आपको मैक्सिमम कलर विच यू विल ऑब्जर्व दैट इज ब्लू। ओके, एंड फ्यू पैचेस आपको किसके देखने के लिए मिलेंगे, फ्यू पैचेस ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन। ओके, सो स्टूडेंट अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं बिकॉज आई शो यू द पिक्चर ऑफ द अर्थ, मैक्सिमम द कलर विच वी ऑब्जर्व इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ दैट इज ब्लू, एंड फ्यू पैचेस ऑफ आपको ब्राउन और ग्रीन के भी देखने के लिए मिलेंगे। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? रीजन इज दैट 72% of the earth surface is covered with water. Okay, and how much percent is the land? It means 28% is land. Is it clear? So and these few patches of the, ये किसके, लैंड के हैं। ब्राउन कलर स्टैंड फॉर द माउंटेन्स, ठीक है, तो ब्राउन और ग्रीन जो है लैंड पोर्शन में आ गया, ठीक है, और जो ब्लू पूरा दिख रहा है आपको ये क्या, वाटर, बिकॉज 72% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड रेस्ट 28% इज अ लैंड। रेस्ट 28% क्या है बेटा, दैट इज द लैंड। अब इसमें भी देखो मैंने वाटर साइकिल आपको डिस्कस की थी, क्योंकि बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होता है, दे सी इन देयर सराउंडिंग्स, तो उनको लगता है कि चारों तरफ लैंड ही लैंड तो है, कहाँ इतना वाटर है। अगर 72% वाटर होता है तो हर जगह उनको वाटर दिखना चाहिए। कई शहर तो ऐसे हैं जहाँ हार्डली कोई रिवर भी नहीं है। आप लोग सुनते होंगे सबसे ज़्यादा पानी सी और ओशंस में होता है, तो सी ओशन हर स्टेट में नहीं है, ठीक है, हर शहर में सी और ओशन है
तो आंसर इज नो। फिर दैट इज द रीजन स्टूडेंट सोचते हैं कि बुक में भी लिखा है, टीचर्स भी बताते हैं कि पूरा तो वाटर ही है, सिर्फ 28% लैंड है, तो ये वाटर है कहाँ? सो दिस वाटर इज प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज लाइक रिवर, पाउंड, सी, ओशंस। बहुत सा वाटर एयर में भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर। आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग। ड्यू टू द हीट ऑफ द सनलाइट, the water on heating it change in the form of a vapor. So water is present in the air also. ठीक है? And due to this vapor, due to this water, जो आपको क्लाउड्स दिखते हैं ऊपर, आप देखते हो पूरे क्लाउड्स हैं, तो ये भी क्या है बेटा? ये वाटर ही तो है, क्योंकि वाटर हैज अ डिफरेंट स्टेट। वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड आल्सो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए गैस आल्सो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड आल्सो। लिक्विड फॉर्म इज वाटर, गैस फॉर्म इज वाटर वेपर, एंड सॉलिड फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ ए आइस। सो जो आपको ये स्काई दिखती है, जो क्लाउड्स दिखते हैं, तो ये सब हाउ दीज आर फॉर्म, दीज आर आल्सो फॉर्म ड्यू टू द वाटर। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको इससे प्रीवियस चैप्टर में वाटर साइकिल में एक्सप्लेन की थी। तो आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम देयर, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि हम हमेशा पढ़ते हैं कि 72% वाटर है, तो इतना ज़्यादा 72% वाटर गया कहाँ? आपको तो लगता है इतना वाटर होता तब तो लैंड सब पानी में सबमर्ज हो जाना चाहिए, मतलब पानी में डूब जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि वाटर कैन फॉर्म इन डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, गैस फॉर्म में, आपके एयर में भी बहुत सा वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर। जो क्लाउड्स फॉर्म हुए हैं ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, water get heated, and on heating the water start changing the form of a water vapor, and with the condensation again it change in the form of a liquid, and these small drops, tiny drops of water, they join to form the clouds. So ये जो पूरे clouds आप देखते हो ना, जो आप दिखाई देते हैं, ये क्या है? ये भी तो water है। और आपने पढ़ा होगा जो सबसे हाइट वाले, मैंने बताया होगा, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 4 और 5 क्लास में आएगा, ठीक है, जब हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर गए होगे बेटा घूमने, तो आपने देखा होगा कि ब्राउन माउंटेन्स के पीछे भी माउंटेन्स दिखते हैं जो बिल्कुल वाइट कलर के हैं। तो वाई दिस माउंटेन्स लुक वाइट? बिकॉज द होल ईयर द सरफेस ऑफ द माउंटेन इज कवर्ड विद द स्नो। इज इट क्लियर? सो तो वाटर, बहुत सा वाटर माउंटेन्स में भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ए स्नो, और इसी वाटर के मेल्ट होने से बहुत सी रिवर्स बनती हैं। पता है बेटा, दैट इज द रीजन। ये जहां हम लोग रहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है पूरे कंट्री के। हमारी पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा क्रॉप्स नॉर्दर्न प्लेन्स में होती हैं, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज द वाटर विच कम्स फ्रॉम, और ये रिवर्स कहाँ से आ रही है? माउंटेन से आ रही है। माउंटेन से कैसे आ रही है? जो माउंटेन्स पे बहुत ज्यादा जो बर्फ है ना, स्नो है, उसके मेल्ट होने से दीज रिवर्स आर फॉर्म। ओके, एंड ड्यू टू दिस द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। ठीक है, अब ये तो हो गई बात। अब देखो 28, अब लैंड। अब जब हम लोग लैंड की बात करते हैं, ठीक है, तो 72% वाटर समझ में अब थोड़ा थोड़ा आप लोग को आ रहा होगा। Water is in rivers also, ponds also, lakes also, sea also, oceans also, clouds are formed, mountains are covered with water. In this manner, there is 72% water on the surface of the earth. अब देखो, अब जब लैंड की बात करें, सिर्फ लैंड की, तो लैंड क्या, लैंड एक जैसा है? If we discuss about the, अब वाटर को तो डिस्कस कर लिया, अब 28% क्या है? 28% इज, दिस सिंबल स्टैंड फॉर परसेंट, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंट, ठीक है, ऐसे स्लैश और ये डॉट, दिस स्टैंड फॉर परसेंट। तो 28% इज क्या है? लैंड, ठीक है,
28% is land. तो all the land look same, so again the answer is no. देखो कहीं पे आपको हिल्स मिलेंगे, ठीक है, कहीं पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, ठीक है, कहीं आपको वैलीज देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, कहीं पे लैंड कैसा होगा, प्लेन होगा, ठीक है। तो जो लैंड जो बचा 28% लैंड जो अर्थ के सरफेस पे है, क्या ये सारा लैंड एक तरह है? तो अगेन द आंसर इज नो. आंसर इज व्हाट? आंसर इज नो. ओके, वाई? कहीं हिल्स देखने को मिलते हैं, हिल्स लिखा फिर माउंटेन लिखा, इसका डिफरेंस समझ लो. होते दोनों एक जैसे हैं, हिल्स की भी चोटियां होती हैं, पीक होते हैं, माउंटेन्स के भी पीक ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? हिल्स का जो साइज है ना बेटा वो स्मॉल होता है, और जो माउंटेन्स होते हैं ना इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है. सबसे हाइट वाले, जैसे हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड में सबसे बड़े माउंटेन कहाँ है? नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा. ओके, तो जो माउंटेन्स होते हैं इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, और हिल्स एज कंपेयर टू माउंटेन दे आर स्मॉल इन साइज. दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन ए हिल्स एंड माउंटेन्स. ठीक है, वैलीज माउंटेन के बीच में अगर प्लेन लैंड हो, ठीक है, जैसे इधर भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़, यहाँ भी पहाड़, और बीच में प्लेन लैंड है, तो इसी को वैलीज बोलते हैं. ठीक है, सबसे ज्यादा वैलीज आपको मिडल हिमालयाज में देखने के लिए मिलेगी. ये क्लास 5 में आप डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है, फिर प्लेट्यूज. प्लेट्यूज क्या होते हैं? जैसे ये आपका लैंड है, तो ये जमीन से ऊंचा होगा, लेकिन ऊपर जाके क्या होगा? ये प्लेन होगा. ऊपर जाके क्या होगा? प्लेन होगा. इसी को प्लेट्यूज बोलते हैं. आप इसका एग्जांपल अपना टेबल भी ले सकते हो जिसपे आप पढ़ाई करते हो. आपके टेबल के नीचे लेग लगे होते हैं और ऊपर से उसका सरफेस प्लेन होता है, सो यू कैन इजिली केप्ट योर नोटबुक्स एंड डू रिटर्न वर्क आल्सो. इज इट क्लियर? तो प्लेट्यूज क्या होते हैं? लैंड से तो हाइट होती है इनकी, लेकिन ऊपर से ये क्या होंगे? प्लेन होंगे. तो दैट स्टैंड्स फॉर द प्लेट्यूज. डेजर्ट एरिया, राजस्थान. ठीक है, सो दिस एरिया रेनफॉल इज वेरी लेस. तो सॉइल ब्रेक हो गई सैंड फॉर्म में. रेनफॉल यहां पे या तो रेन होती ही नहीं है, या तो होती है तो बहुत लेस होती है. ठीक है, सो दैट एरिया हियर व्हाट हैपन? द सॉइल ब्रेक डाउन एंड इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए सैंड. रेत बन गया. सो दिस कंडीशन यू विल सी इन द डेजर्ट एरिया. ऐसी कंडीशन आपको कहां देखने के लिए मिलेगी बेटा? डेजर्ट एरिया में. और फिर प्लेन्स. प्लेन्स तो देख लो, जैसे आप वाराणसी में रहते हो, यहाँ लैंड क्या है? प्लेन है. यूपी में जितने भी शहर है आप आओगे जाओगे देखोगे मैक्सिमम, जैसे हम इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको समझने में आसान होगा. हम लोग कहाँ रहते हैं? वाराणसी में रहते हैं. यहाँ का लैंड कैसा है? प्लेन है. तो दैट इज द रीजन जो 28% लैंड है जो प्रेजेंट है अर्थ के सरफेस पे, 28% ऑफ लैंड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज नॉट द सेम. वो सेम है, सो आंसर इज नो. समवेयर वी ऑब्जर्व हिल्स, कहीं हिल्स है. समवेयर वी फाइंड माउंटेन्स. समवेयर वी सी वैलीज. समवेयर वी सी प्लेट्यूज. समवेयर वी सी डेजर्ट्स. and some places we see that are plain. So in this way we have different type of a land present on the surface of the earth. ठीक है, आप इसको पिक्चर से भी अच्छा समझ सकते हो. ये तो मैंने लिख दिया. यू कैन सी द पिक्चर गिवन इन योर बुक आल्सो. देखो ये प्लेन्स है. ठीक है, दिस इज अ प्लेन एरिया. What is this? This is the desert area.
Okay, after that, what are these are hills. Okay, these are hills. And after that, these are mountains. Okay, thank you student. We will continue the topic in the next video.